بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، اس نظام کو جس طرح سے کنٹرول کیا جا رہا ہے کہ جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ، تیرہ پارٹیوں کا اتحاد اور پولیٹیکل گینگسٹرز، پورے کا پورا نظام ایک شخص کو گرانے کے لیے اکٹھا ہو گیا، لیکن عمران خان نے اس نظام کو ننگا اس خوبصورتی سے کیا ہے کہ اس کے مخالفین بھی اس بات کو ماننے کو تیار ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سسٹم کا آخری کھلاڑی تھا اور اس کے بغیر یہ نظام اب چل نہیں سکتا۔ میں جناب کچھ بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلی خبر پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کو آج فتح مبارک ہو، وہ جیت چکے ہیں۔ اور ان 6 ججز نے جس طرح سے جوڈیشری کو ننگا کر کے رکھ دیا، اور ان 6 ججز نے جو حق اور سچ کی آواز بلند کی کہ کیسے ان کے کام میں ایجنسیز مداخلت کر رہی تھیں، تو آج جناب ان کو فتح مبارک ہو۔ جنرل فیصل رسیف صاحب اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی بھی اس کیس میں جناب انٹری ہو گئی ہے، ان کو طلب کر لیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے آج ایک بہت بڑا حکم جاری کر دیے، اور جسٹس اطہر منالہ نے جس طرح سے چیف جسٹس کو آج ننگا کیا، میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں وہ کہانی آپ کے سامنے رکھی بھی۔ اب جناب یہ تمام تر ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ خفیہ ایجنسیز جو ہیں وہ اب الرٹ ہو گئی ہیں۔ اور پھر دوسری جانب آج بشرا بی بی کے ساتھ ڈیل کی خبر کی تصدیق ہو چکی ہے، اور یہ تصدیق کوئی صحافی نہیں کر رہا، نہ عمران خان صاحب نے کی ہے، نہ میں کر رہا ہوں، بلکہ اسٹیبلشمنٹ خود آج عدالت کے اندر آئی اور ان کے اپنے قاصد نہیں بلکہ ان کے اپنے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس خبر کی جناب تصدیق کر دی۔ کون سی ڈیل چل رہی ہے اور بشرا بی بی کے ساتھ کے صاحبہ کے حوالے سے کچھ اہم ترین تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو اس ڈیل کا علم ہے یا نہیں ہے، اور پھر امریکہ بھی اس پورے کھیل میں کودا ہے۔ اور اگر یوں کہوں کہ امریکہ کپتان کو لینے آ چکا ہے تو کہنا غلط نہیں ہوگا، یہ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ امریکہ پاکستان آ رہا ہے اور عمران خان کو لے کر ایک بہت بڑا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اس حوالے سے کچھ اہم ترین تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام طرح اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف جو ہے انہوں نے 3 رکنی ایک کمیٹی بھی بنائی، اور اس کمیٹی میں عمر ایوب، علی امین گنڈا پور، اسد قیصر صاحب کو نامزد کیا۔ عمران خان صاحب نے خود کیا کہ یہ ان 3 لوگوں کو میں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا جو ہے وہ مینڈیٹ دے رہا ہوں۔ تو آج چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک میڈیا ٹاک کی، انہوں نے کہا کہ نون لیگ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کے علاوہ ہر سیاسی جماعت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے۔ اب چونکہ نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم جو ہے وہ رجیم چینج آپریشن کے ایک اہم ترین کھلاڑی تھے، مہرے کے طور پر کام آئے۔ پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے بولیاں لگائیں، ایم کیو ایم اس کا اہلکار بنی، اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے اس رجیم چینج آپریشن کی وہ بینیفیشری تھی، انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، بلکہ یہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اس کی بینیفیشری تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری تحریک کا مقصد عدلیہ کی آزادی اور مینڈیٹ کی واپسی ہے، الائنس کے ساتھ احتجاج جاری رہے گا، اور نیب کیسز صرف عمران خان کے خلاف ہیں، باقی کو کھلی چھوٹ ہے۔ انہوں نے میڈیا سے جناب گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی جانب سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی سربراہی کے لیے شیر افضل مروت کے نام کی حتمی منظوری دے دی گئی ہے۔ اب جناب شیر افضل مروت چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہیں وہ نامزد ہو چکی ہیں، اور عمران خان ہمارے چیئرمین تھے، ہمارے چیئرمین ہیں، اور انشاءاللہ تا حیات پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین رہیں گے۔ تاہم فیصلوں کا اختیار انہی کے پاس ہے۔ 5 روز میں 3 مقدمات میں سزائیں سنا کر عمران خان کو عوام سے دور کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ عوام کے دلوں میں بستے ہیں۔ عمران خان جیل میں ہوں یا باہر، وہ لیڈر تھے، لیڈر ہیں، اور پھر لیڈر رہیں گے۔ آج جناب بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے بہت ساری چیزیں واضح کر دی ہیں، احتجاج کو لے کر، مذاکرات کو لے کر، اور شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ان کا نام بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے جناب فائنل کر لیا گیا ہے، مشاورت مکمل ہو چکی ہے، اور عمران خان صاحب نے جناب اس کی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر منظوری دے دی ہے۔ اب جناب دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل اسمبلی میں کھڑے ہو کر تقریر کی، انہوں نے کہا کہ یہ چوری شدہ مینڈیٹ حاصل کیا ہوا ہے، اسمبلی کو بیچا گیا، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی یہاں پر لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو لہٰذا مینڈیٹ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو دیا ہے، تو یہ حکومت مینڈیٹ پی ٹی آئی کو واپس کرے اور پی ٹی آئی کو حکومت بنانی چاہیے۔ تو آج اپوزیشن جماعتوں کی مشترکہ احتجاجی تحریک کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے فوری رابطہ کرنے کا جناب فیصلہ کر لیا ہے، اور ان کو احتجاجی تحریک میں شامل ہونے کے لیے باقاعدہ دعوت بھی دے دی جائے گی۔ اور ذرائع کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ اسد قیصر نے پارٹی اراکین سے رات کے اہم مشاورت مکمل کر لی ہے، جس کے بعد سابق اسپیکر قومی اسمبلی نے گرینڈ الائنس میں شامل جماعتوں کے سربراہان سے بھی رابطے تیز کر دیے ہیں، اور احتجاجی تحریک کے حوالے سے اسد قیصر نے پارٹی کی سینئر قیادت سے بھی مشاورت کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ اور اس حوالے سے
बैरिस्टर गौहर अली खान की मौलाना फजल रहमान साहब के साथ एहतजाज के हवाले से बातचीत भी चल रही है, और MKM पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के अलावा सबसे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करने को तैयार हो चुकी है। ये जनाब बड़ी अहम तरीन खबर है, और इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में जो है वो खलबली मची हुई है। इमरान खान साहब जो हैं वो एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं, और हो सकता है कि धरने का ऐलान कर दिया जाए, लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया जाए, इस्लामाबाद का रुख किया जाए। पेशावर से अली अमीन गंडापुर साहब ने भी इसकी धमकी दे दी, और फिर खान साहब ने इसको इंडोर्स भी किया कि ये धमकी जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त दी है। तो जनाब अब कुछ और अहम खबरें हैं कि बुशरा बीबी की डील के हवाले से कुछ खबरें चल रही थी, और ये भी कहा गया खान साहब जो हैं वो खामोश हो जाए 2 साल के लिए, बनी गला बैठ जाएं, और वो असेंबली के अंदर भी आ सकता है लेकिन उनको वज़ीर आज़म नहीं बनाया जाएगा। और फिर उनको कहा गया कि आप लंदन चले जाएं, लेकिन खान साहब जो हैं वो उन्होंने सब कुछ करने से साफ साफ इनकार कर दिया। इमरान खान ने कहा कि ना मैं 9 मई की जिम्मेदारी उठाऊंगा, ना मेरी जमात ने 9 मई किया है, और ना मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा। खान साहब ने जनाब उसको ये जो पैगाम जो है वो ताकतवरों को जनाब पहुंचा दिया। अब बुशरा बीबी साहिबा को बनी गला रखा गया। ये क्यों रखा गया आप सब जानते हैं। ये पूरे प्लान के मुताबिक इमरान खान साहब को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे थे, लेकिन बुशरा बीबी भी डटकर खड़ी हुई हैं और इमरान खान साहब भी डटकर खड़े हुए हैं। कमल चौधरी साहिबा ने ये जो है वो एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को ये पैगाम पहुंचाया गया है कि आप इमरान खान साहब को मनवा लें, उनको शरायत हमारी पहुंचा दें, अगर आप वो नहीं मानते तो आपके साथ बहुत बड़ा जुल्म होने जा रहा है, आपके साथ हमने बहुत जो ज्यादतियां करनी है, आप हैरान हो जाएंगे कि हमने आपको जो है वो आपकी मंजी ठोक के रख देनी है। ये पैगाम बुशरा बीबी साहिबा को बनी गला पहुंचा दिया गया। तो जनाब अब एक और बड़ी खबर है, जियो न्यूज जनाब इसको रिपोर्ट कर रहा है, और जियो न्यूज के मुताबिक जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्टेट काउंसिल ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी से डील का भांडा उन्होंने फोड़ दिया। स्टेट काउंसिल ने ये डील का भांडा फोड़ा कि उनके साथ जो है वो डील हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी को बनीगाला सब जेल से डेला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर जस्टिस हसन औरंगजेब ने जनाब समाअत की, और अदालत ने बुशरा बीबी के वकील उस्मान रियाज गिल की आज फिर हाजिरी पर बरहमी का इजहार किया, और कहा कि फिर कह रहा हूं कि दोनों तरफ अदालत के साथ सियासत खेल रही हैं। स्टेट काउंसिल ने मौक़िफ़ अपनाया कि दोनों अफ्रीकैन की इस्तदा है कि मजीद कुछ दिन का वक्त दे दिया जाए, यानी कि दोनों अफ्रीकैन ने वक्त मांग लिया है और हमारी बातचीत चल रही है, और उम्मीद है कि जल्द एग्रीमेंट हो जाएगा। यानी कि बुशरा बीबी के साथ ये एग्रीमेंट होने जा रहा है। स्टेट काउंसिल ने इस बात का इतराफ कर लिया है। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हैरानी से इस्तफसार किया कि एग्रीमेंट, सवाल उन्होंने पूछा, जिस पर स्टेट काउंसिल ने बताया कि हमारा 2 तरफा अरेंजमेंट हो रहा है, अभी हतमी नहीं हुआ, इसलिए निकात अभी नहीं बता सकते। यानी कि किसके ऊपर बातचीत चल रही है, क्या ये वही पैगामात हैं जो खान साहब को पहुंचाए गए, बुशरा बीबी को बताया गया, और क्या बुशरा बीबी साहिबा जो है वो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करवा रही हैं। एक बहुत अहम सवाल है, और स्टेट काउंसिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खड़े होकर ये जो है वो एक स्टेटमेंट दे दिया है, जिसने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल के रख दिया है। और मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स किए कि ये अदालत इस केस को ज़ेर इल्तवा होने से मुतालिक बहुत फिक्रमंद है। ये रिट फाइल करते हैं, जब देखते हैं रिलीफ मिलने लगा है तो फिर खेल शुरू कर देते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने स्टेट काउंसिल से मुकालमा करते हुए कहा कि आप लोग भी कुछ कम नहीं है। वकील खालिद चौधरी ने अदालत को बताया कि उस्मान गिल इदत में निकाह केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, इसलिए यहां पेश नहीं हो सके, और इस पर अदालत ने रिमार्क्स किए कि ये केस मुलतवी करने की इस्तदा का कोई ग्राउंड नहीं है। आखिरी बार मौका दे रहा हूं, आइंदा समाअत पर लाजमी पेश होकर दलाइल दें। अब जनाब ये केस की समाअत जो है उसको 2 मई तक मुलतवी कर दिया गया है, और ये एक डील जो है वो चल रही है जिसका एक बहुत अहम तरीन इंकशाफ हुआ है। और फिर दूसरी जानिब अमेरिका भी कप्तान को जनाब लेने आ चुका है। बहुत बार खान को ऑफर हुई कि आप जो है मुल्क छोड़कर चले जाएं। सऊदी अरब भी इस सारे सिनेरियो में अपना रोल प्ले कर रहा है, और मोहम्मद बिन सलमान जो है उनके साथ आर्मी चीफ साहब की मुलाकात, फिर जनाब शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर गए हुए हैं सऊदी अरब में, उनकी आम तरीन वहाँ पर मुलाकातें भी हो रही हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की जो वहाँ पर जनाब सारे मामला हैं वो उनको देख रहे हैं। और फिर दूसरी जानिब जो सऊदी अरब के जनाब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए, और उनके वज़ीर दिफा भी रात के अंधेरे में पाकिस्तान आते हैं, आर्मी चीफ साहब से मुलाकात की, और उनकी किसी भी किस्म से कोई मुलाकात शहबाज शरीफ साहब से या सदर पाकिस्तान से नहीं हुई, तो वो मुलाकात भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो सऊदी अरब भी पाकिस्तान को यही बात कर रहा है कि आप मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम का खात्मा करें, और फिर ये भी बात बताया गया कि अगर आपने ख़त्म करना है तो उसके लिए आपको इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा। तो इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो इनके लिए दर्दसर बनी हुई है। इनको खौफ ये है कि जब इमरान वापस आएगा तो वह हमें उल्टा लटका देगा। तो आज अमेरिका भी सारे खेल के अंदर जो है वो कूद पड़ा है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात पर बातचीत जारी है, और अमेरिका का आला सतह का वफद भी पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है। बहुत बड़ी खबर है
मीडिया पर रिपोर्ट नहीं हो रही थी, लेकिन अचानक से खबर आ जाती है, जियो न्यूज़ पर ये खबर रिपोर्ट होती है। आज़ाद सैयद साहब ने खबर को रिपोर्ट किया और उन्होंने ब्रेक किया कि अमेरिका का आला सतह का वफद पाकिस्तान में मौजूद है। वो क्यों मौजूद है, उस खबर को क्यों छुपाया गया, ये क्या वजह हो सकती है कि जहां पर पाकिस्तान, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जहां पर इमरान खान साहब के साथ डील की बातें हो रही हैं, खान साहब ने डील की हामी भर ली और उन्होंने कमेटी को तश्कील दे दिया। खबरें चल रही हैं कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। आज पुश हबीबी के हवाले से स्टेट काउंसिल ने इसका भांडा फोड़ दिया। तो सफारती ज़राए के मुताबिक अमरीकी वफद इतवार की शब दोहा से पाकिस्तान पहुंचा और अला सतह का अमरीकी वफद 3 रुकनी है, जिसकी क़यादत अमरीका के अंडर सेक्रेटरी जॉन बॉस कर रहे हैं। और सफारती ज़राए का यह भी कहना है कि मौजूदा हुकूमत के इक़्तिदार संभालने के बाद पाकिस्तान आने वाला ये पहला आला सतह का अमरीकी वफद है और दौरे में पाक अमरीका ताल्लुकात और इसमें बेहतरी के लिए मुफस्सल जायजा भी लिया जा रहा है। अब आपको एक और बड़ी खबर देना चाहता हूं कि उमर अयूब साहब ने असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर यह कहा था कि हमें बताया जाए कि मौजूदा हुकूमत ने या फिर निगरान हुकूमत ने अमरीका को 2 अड्डे दे दिए हैं। तो उस हवाले से भी बातचीत चल रही है क्या पाकिस्तान अमेरिका को मिलिट्री बेसिस देने जा रहा है, जिसका इंकशाफ उमर अयूब साहब ने जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर किया था। तो ये एक बड़ी खतरनाक सी सूरत हाल है जब इमरान खान साहब ने मिलिट्री बेसिस अमेरिका को देने से इनकार कर दिया था और फिर उसकी पदाश में एक रजीम चेंज ऑपरेशन करके इमरान खान साहब का तख्ता उल्टा था पाकिस्तान के जो है वो मुकाबली इस्टेब्लिशमेंट को साथ मिलाकर। तो सफारती ज़राए का ये कहना है कि खत्ते की सूरत हाल, या आपने गौर करना है कि जो मिलिट्री बेसिस हैं उनके साथ जुड़ी हुई हैं, खत्ते की सूरत हाल और सिक्योरिटी मामलात पर भी ज़ेर गौर हैं, जबकि अमरीकी वफद आज रात वापस रवाना हो जाएगा। बहुत बड़ी खबर जनाब मैंने आपके सामने ब्रेक की। अब फिर दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने एक लेटर लिखा और उस लेटर में जनाब खुफिया एजेंसीज की मुदाखलत का जिक्र हुआ कि इमरान खान को केसेस को देखना हो या कोई भी केस हो, खुफिया एजेंसीज के जो लोग हैं वो हम पर जो है वो इस वक्त मुदाखलत कर रहे हैं, प्रेशर डाला जाता है, फैमिलीज को दबाव में लिया जा रहा है, हमें धमकियां दी जा रही हैं। डीजीसी का उसमें जिक्र हुआ, यानी कि मेजर जनरल फैसल नसीर साहब का जिक्र हुआ और मुबैना तौर पर, और फिर इमरान खान साहब को लेकर इसमें बातें हो रही थी। और फिर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस की समाअत हुई। जस्टिस अतर बिनाला साहब ने जो रगड़ के रख दिया चीफ जस्टिस साहब को, वो मैंने आपके पिछले वीडियो में रिपोर्ट भी किया। अब जनाब इस समाअत का हुक्मनामा जनाब जारी हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया में मुबैना मुदाखलत पर हुकूमत और एजेंसियों से तफसीली जवाब तलब कर लिया है। अब एजेंसीज के जो हेड हैं DJISI डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब, ज़ाहिर है उनसे जवाब तलब होगा। DGC साहब का जिक्र हुआ है, फैसल नसीर साहब जो कि बड़े ताकतवर शख्सियत हैं, उनसे जो है वो जवाब तलब किया गया है। और ज़राए के मुताबिक 6 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस की सरबराही में इस मामले की समाअत हुई और जनाब ये तहरीर हुक्मनामा में लिखा गया है कि 5 हाई कोर्ट्स ने अपनी तजावीज़ जमा करवाई हैं और अटॉर्नी जनरल ने दौरान समाअत तजावीज़ पढ़कर सुनाई और पाकिस्तान बार कौंसिल ने अपनी तजावीज़ भी जमा करवाई। मुनासिब होगा कि बार एसोसिएशन और बार कौंसिल मुतफिका तौर पर कोई जवाब जमा करवाएं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 के 8 जजेस जो हैं वो डट गए और उन्होंने ये बात वाज़ेह तौर पर कर दी है कि हम इस मुदाखलत के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। और इसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब जो हैं वो भी डट कर खड़े हो चुके हैं। तो अब ये जनाब सारी सूरत आपके सामने है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया कि जिन नुकात पर इत्तफाक ना हो सका उनको अलग दायर किया जा सकता है। और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट बार का इजलास नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आइंदा समाज से कबल तजावीज़ जमा करवा देगी और पाकिस्तान बार कौंसिल दीगर बार कौंसिल अपनी तहरीरी जो उनकी तजावीज़ हैं उन्होंने जमा करवाती हैं और हुकूमत इस मामले पर तहरीरी हुक्मनामा जवाब जो है वो जमा करवाएगी और एजेंसियों पर लगे इल्ज़ामात भी वो भी अपना जवाब जमा करवाएंगे। अब एजेंसीज भी अपना जवाब जमा करवाएंगी, उनसे जवाब तलब कर लिया गया है। क्या इसको डीडीसी जो है वो जमा करवाएंगे या फिर DJISI करवाएंगे, ये एक बहुत अहम तरीन सवाल है। तो अब जनाब ये मामला बड़ा आपके सामने इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है और इस केस की समाअत 7 मई तक जो है उसको जनाब मुलतवी कर दिया गया है। एक हफ्ता पाकिस्तान की सियासत में बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस अपने लाजमी ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।